Gujarat BJP Legislative Party meeting underway to deliberate on new Chief Minister after resignation of Vijay Rupani. Central leadership of BJP reached Gandhinagar for the meeting. All BJP MLAs also attend the meeting. In other news, terrorist attack, police party in Khanyar area of Srinagar, one cop injured. Operation still underway. The central government reduces the standard rate on crude palm, soya bean and sunflower oil by 2.5% to ensure availability of edible oils at reasonable prices to the consumers in the country. New rates effective from Saturday. Nationwide corona vaccination campaign picking up pace. Cumulative vaccination crosses 74 crore mark. Over 72 lakh people administered doses on Saturday. And in sports, Britain's Emma Raducanu becomes the US Open Women's Singles Champion. 18-year-old Raducanu defeats Canada's Leila Fernandez 6-4, 6-3 in straight sets to win her maiden Grand Slam title. Emma becomes first British female tennis player after 44 years to win a Grand Slam. Novak Djokovic aims to make history with eyes on calendar Grand Slam. And in soccer, Cristiano Ronaldo scores a brace in his second Premier League debut, marking his strong return to English club Manchester United after 12 years. Helps Manchester United beat Newcastle 4-1 to top the league. Hello and welcome. You're watching News Connect on DT India, your weekend dose of all the top trending national, international sports news. First up, let's take a look at the national stories that we are tracking for you this Sunday evening. The suspense over who will succeed Vijay Rupani as the Gujarat Chief Minister will be over after the meeting of the BJP legislators that is underway as we speak at Gujarat BJP office in Gandhinagar. And those present in the meeting include BJP MLAs, former Chief Minister Vijay Rupani, C.R. Patil, also central observers Narendra Singh Tomar, Prahlad Joshi, Tarun Chugh, Nitin Patel, Union Minister Mansukh Mandavia, Purushottam Rupala and others. The meeting of the BJP core committee and central observers is over. Now BJP legislature party meeting is underway to elect a new chief minister after Vijay Rupani quit on Saturday. Let's go across to Jatin over phone line to get latest inputs on this developing story. Jatin, so is it a matter of time when the name is going to be out, who's going to be the next Chief Minister of Gujarat? What more information can you share with our viewers without speculating much? जी, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी ने रिजाइन किया था, उसके बाद आज सुबह से कमलम में काफी हलचल सुबह से ही शुरू हो गई थी। और अभी जो नए मुख्यमंत्री को गुजरात के कौन होंगे उस पर तभी जो सस्पेंस बना है वो कुछ ही थोड़ी देर में वो क्लियर हो जाएगी कि गुजरात के अगले मुख्यमंत्री कौन हो गए। सुबह से आज जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें केंद्रीय जो निरीक्षक थे जो दिल्ली से आए हुए थे। जी जतिन, क्या हमें सुन पा रहे हैं आप? उसमें चर्चा करके जो गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे उनका नाम अभी हो जाएगा। अगर बैठक की बात करते तो मुख्यमंत्री विजय रूपानी, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद जोशी, डेप्यूटी सीएम जो थे नितिन पटेल, पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख मांडविया जैसे जो अग्रणी बीजेपी के लीडर थे, जो गुजरात के नेता है, वो भी उस मीटिंग में थे। और अभी थोड़ी देर बाद वो अगले मुख्यमंत्री गुजरात के नए कौन होंगे उसका नाम भी अभी थोड़ी देर में डिक्लेयर हो जाएगा। जी, क्या कुछ प्रबल दावेदारों का नाम सूची में ऊपर है?
जी अगर सूत्रों के मुताबिक बात करें तो नितिन पटेल का नाम भी चल रहा है, जो अपने केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया का, उनका भी नाम चल रहा है। ऐसे सूत्रों से 3-4 नाम चल रहे हैं कि भाजपा की मोहर किस पर लगती है। जो भी कैपेबल होगा, जो गुजरात को जो अच्छी तरह से जनता के अच्छी तरह से सरकार चला सके, और जो एक ऐसा चेहरा होगा कि गुजरात की जनता को भी मान्य होगा, ऐसा चेहरा एक होगा, वो अगले मुख्यमंत्री के तय पर उसका नाम तय होगा। जी क्या एक पूरे रीशफल की आशंका जताई जा सकती है कि केवल एक नया मुख्यमंत्री गुजरात को मिलेगा? क्या कुछ और चेंजेस आने वाले समय में देखने को मिलेंगी? क्या कुछ सूत्रों के अनुसार पता चला है? जी चौकस, जिस तरह से जो अगले मुख्यमंत्री हो गए तो उसके बाद एक सरकार के मंत्रियों में भी बदलाव किया जा सकता है। जो जिसकी कामगिरी जो गुजरात के जिन क्षेत्रों में अच्छी रही है, उनको तो मंत्री पद भी दिया जा सकता है, यानी कि कह सके मंत्रिमंडल में उसके बाद बदलाव आ सकता है। तो अभी जो आप हमें बता रहे हैं कि बीजेपी लेजिस्लेचर्स की एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है, और अनाउंसमेंट कब तक एक्सपेक्टेड है कि ऑफिशियली औपचारिक तौर पर कब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आएगा? जी अगर जिस तरह से मीटिंग अभी खत्म हो गई है, कोर कमेटी की बैठक, अब विधायक दल की बैठक में भी अभी नाम फाइनल तय हो जाके उम्मीद कर सकते हैं शाम तक हमको कोई अच्छा नाम मिल सकता है, और गुजरात के नए अगले मुख्यमंत्री कौन होगा वो तय हो जाएगा। फिर राजभवन में कल के लिए उनका टाइम भी लेने के लिए वो कमेटी आ सकती है, और कल पर अगर मान लो कि अगर आज शाम तक फाइनल नाम हो जाता है तो अगले दिन कल नए मुख्यमंत्री का शपथ भी हो सकता है। जी जतिन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। जैसे ही कुछ ताजा जानकारी मिल पाएगी हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। मीनवाइल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। सो माय कॉलीग जतिन रिपोर्टिंग फ्रॉम गांधीनगर स्टेटिंग दैट द मीटिंग of the BJP legislators, a very important meeting of the BJP legislators is currently underway, and the name of the new Gujarat Chief Minister is going to be out in some time officially. We're going to keep track of that developing story for you. Meanwhile, let's shift our focus on News Connect to other stories that we are tracking for you at this hour. Well, this is seen as a new initiative. Central ministers will be visiting Jammu and Kashmir, which is being seen as a significant outreach by the government, close on the heels of many parliamentary panels and dozens of MPs touring the Union territory, along with Ladakh, who 2 years after the nullification of Article 370, and this will send a strong message to how the centre has a special focus on development across Jammu Kashmir, according to sources. Now, most of the ministers will complete their tours this month. Over 200 MPs from at least 14 parliamentary committees have visited Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh in recent months, interacting with masses and receiving a feedback on the problems they face. During the visit, many parliamentarians have told that they noted lower levels of tension and a yearning for normalcy and peace in the valley. Terrorists fired upon police party near Khanyar area of central Srinagar. In this attack, one cop has reportedly been injured, and according to reports, who later succumbed to the injury. He was identified as Arshad Ahmad. He was shifted to nearby hospital for treatment. Meanwhile, whole area has been cordoned off to nab the attackers. Terror attack reported in Khanyar area in Srinagar, where one one Jammu Kashmir cop has succumbed to the injuries. And staying with Jammu Kashmir now, news coming in from Jammu. A gunfight started between terrorists and security forces in higher reaches of Behrot village in Thana Mandi sub-district of Rajouri district today morning. The encounter broke out after a joint team of police and army launched a cordon and search operation in the area following information about the suspected movement of terrorists from across the LOC in Rajouri, and also having a specific input about the presence of some militants. The place is close to the LOC, and as a joint team of forces approached towards the suspected spot, the hiding militants fired upon the forces, triggering off a gunfight. The search operation was jointly launched by the police and army in the early hours today. The gunfight was underway when the reports last came in, and more details are awaited. The twin border districts of Rajouri and Poonch in the Jammu region have witnessed a spurt in infiltration attempts since June this year, resulting in killing of 9 terrorists in separate encounters. And now let's move on and get you some more news.
the government has reduced Salman. All right, we go back to that Rajouri encounter. My colleague Salman is joining us on phone line with latest. Yes, Salman, what more information? Is the encounter still underway? It is not actually an encounter in the Khanyar area. There has been a footage that has been... Salman, you're giving us inputs on the Khanyar attack? Yeah. Okay, please go ahead. So it is not an encounter in the Khanyar area. What actually happened, because there has been a CCTV footage which has been seen, is that there are three guys who probably having a pistol, and the sub-inspector Arshad Ahmed, he was walking and they pumped 2 bullets into his neck area, and then they flee from the area. The area has been cordoned off, but there has not been an encounter. This has not triggered an encounter. There might be an encounter later in the day because police are searching for killers. All right, Salman Qazi, thank you very much for those quick inputs on the gunfight that erupted in Khanyar of Srinagar district, where reportedly one cop has succumbed to injuries. Now let's shift our focus to developments in Gujarat and the suspense over who will succeed Vijay Rupani as the next Chief Minister of Gujarat is going to be over in some time. We're getting some live visuals. Let's just go live over to Gandhi. इन सब ने समर्थन किया, लेकिन जब प्रस्ताव रखने की बात आई तो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जी ने कहा अगले विधानमंडल दल के नेता के नाम का प्रस्ताव मैं रखूंगा, और विजय भाई रूपाणी जी ने इस क्षेत्र के सार्वजनिक जीवन में भाव अच्छे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सहज सरल नेता, सार्वजनिक जीवन में अनेक संस्थाओं से जुड़े रहने का और काम करने का जिन्हें अनुभव है, शिक्षा की दृष्टि से वो इंजीनियर है, पहले भी नगर पालिका और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि विजय भाई रूपाणी जी ने उनके व्यवहार को, उनके जीवन को देखकर ही काम किया। ऐसे कार्यकर्ता श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ये प्रस्ताव आ गया है, प्रस्ताव का समर्थन हो गया है। अब मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं सदन में ये पूछना चाहूंगा, इस काम के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव है? कोई प्रस्ताव है? सारे लोग दोनों हाथ उठाकर जाओ, मीडिया चलो भूपेंद्र पटेल के पास चलो, जाएगा उधर अमन भाई किधर बोलो, थोड़ा हाथ नीचे ना, थोड़ा सा। थैंक यू भाई। अमन भाई इधर रुको, इधर आएगा अमन भाई। देखो आए इधर, ये रुको थोड़ा आगे चलो, थोड़ा आगे चलो। All right, so we have breaking news coming in from Gandhinagar. Bhupendra Patel is going to be the next Chief Minister of Gujarat. He is taking over reins from former Chief Minister Rupani. He is legislator from Gatloria constituency in Gujarat, and just a while back he has been elected as the BJP Legislative Party leader. Bhupendra Patel elected by the BJP Legislature Party unanimously by all the party members of the Gujarat BJP as the next Chief Minister of Gujarat, hence ending all speculation as a build-up to this big announcement. So it's Bhupendra Patel taking over from Vijay Rupani.
Bhupendra Patel is legislator from Gatlodia constituency there in Gujarat, thus ending all speculations and suspense over the timings of this takeover, taking over as the new chief minister in the state of Gujarat. Hectic parleys and meetings finally leading up to this announcement. These are the live visuals from BJP headquarters in Gandhinagar. Former Chief Minister Vijay Rupani formally welcoming, or rather handing over the reins to the next man at the helm of affairs, Bhupendra Patel. Live visuals from BJP headquarters in Gandhinagar. Bhupendra Patel, new Gujarat Chief Minister. Formally welcomed by other BJP Legislative Party members as well. As we stay with these visuals, जतिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, तो भूपेंद्र पटेल है अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री। भूपेंद्र पटेल के पॉलिटिकल करियर के बारे में गठलोडिया कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, थोड़ा सा और जानकारी दें हमें। और ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से एक यूनानिमस डिसीजन रहा है पार्टी का गुजरात में उनको इलेक्ट करने का। जी चौकस, जिस तरह से जो नाम आया है अभी नए मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल का, तो बात करके कॉमन मैन आदमी है भूपेंद्र पटेल। एक सिंपल सा व्यक्ति है और छोटा सा कार्यकर्ता था, तभी उनको कॉर्पोरेटर भी बनाया गया था। बाद में उनको ओडा का चेयरमैन जो अहमदाबाद के थे वो भी बनाया था, और बाद में अभी ये पहली बार उनको एमएलए की टिकट इस बार दी गई थी। और उसके बाद आज अगर बात करते हैं तो उनका जो मुख्यमंत्री के तौर पर नाम आया, तो सबको एक तरह से एक आश्चर्य की बात के किस तरह से एक जो छोटा सा कार्यकर्ता है, और बीजेपी की जो प्रणाली रही है कि जो नाम चर्चा में है उसके अलावा दूसरा ही नाम आता है। और खास कर भूपेंद्र पटेल की बात करते हैं तो वो घाटलोडिया से वो अभी विधानसभा में चुने गए हुए थे। और कह सकते हैं कि एक छोटा सा कार्यकर्ता को जो बीजेपी जो एक तक देती है, उसी तरह से आज भूपेंद्र पटेल का नाम आया जो सबको चौंकाने वाला है। लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पर लोगों के पाटीदार समाज के लिए भी ये एक नाम है जो वो सर्वसम्मति से चुना गया हुआ ऐसा एक नाम हो सकता है जिस पर कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि इस नाम में मतभेद हो। और पार्टी ने जो डिसीजन लिया है, एक छोटे से कार्यकर्ता को एक तक दी गई है। जी, एक छोटे से कार्यकर्ता, लेकिन जो इनका एक बॉडी ऑफ वर्क रहा है, जो इनका एक कार्यकाल रहा है, अगर इनके पॉलिटिकल करियर जो आप बता रहे कि कार्यकर्ता के तौर पर एक कॉमन मैन की इनकी छवि रही है, क्या कुछ सूत्रों के अनुसार आप जान पा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में ये एक जो फेरबदल हमें देखने को मिला, उच्च स्तरीय फेरबदल गुजरात में, जतिन थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी चौकस, जिस तरह से गांधीनगर लोकसभा मत क्षेत्र है अमित शाह जी का, उसी मत क्षेत्र के अंदर ये विधानसभा घाटलोडिया विधानसभा आती है। और जो भूपेंद्र पटेल है वो एक अमित शाह से भी काफी जुड़े हुए थे और एक सन्निष्ठ कार्यकर्ता बीजेपी के कहे जाने वाले होते हैं कि जो कॉमन मैन की तरह लोगों को और कार्यकर्ताओं के साथ लेके चलते हैं। और उसी तौर पर उनका नाम आज पसंद किया गया है, वो भी हम कह सकते हैं। जी हम थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहे थे कि एक तो फेरबदल मुख्यमंत्री के नाम को लेकर उस पे अब सस्पेंस खत्म हो चुका है, तो क्या भूपेंद्र पटेल की जो कैबिनेट होगी या कुछ और बड़े फेरबदल देखने की आशंका है गुजरात में, जतिन? जी चौकस, अगर फेरबदल की बात की जाए तो 5 या 6 मंत्रियों को वो बदला जा सकता है कि जिस तरह से जो उनकी कामगिरी रही है उसे देखकर नए लोगों को भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए। ऐसा हो सकता है कि कई मंत्री ऐसे हैं जो जिसके काम अच्छी तरह से नहीं हुआ, उनको बदलकर कुछ नए चेहरे, 5 या 6 नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में आ सकते हैं, जो युवा चेहरे वो खासकर हो सकते हैं। जी जतिन, आप हमारे साथ बने रहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया जतिन। जस्ट टू क्विकली ट्रांसलेट these important points from my colleague Jatin, though not really speculating, but it's going to be very interesting to see how the Jatin Patel cabinet is really going to look like. B, are there any big changes expected in the cabinet in Gujarat, or sort of reshuffle or a rejig? Well, that's an open-ended question. We will not speculate on those lines, but yes, what we do know and what we can formally and officially share with the viewers of DD India, that Bhupendra Patel is now next Chief Minister of Gujarat, taking the reins from Vijay Rupani. Patel is now succeeding Vijay Rupani. Bhupendra Patel representing the Gatlodia constituency. जी जतिन, आप हमसे बने रहिए और हम बात कर रहे थे कि अब
अब जो एक नई कैबिनेट की जो शक्ल होगी, क्या उसमें नए नाम कुछ देखने को मिलेंगे, क्या किसी तरीके का रीशफल होगा? एक सिग्नल जो पार्टी ने एक मैसेज जो पार्टी देने की कोशिश कर रही है, या जो पार्टी ने मैसेज दी है भूपेंद्र पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री बना के, आप खुद बता रहे हैं हमारे दर्शकों को कि एक इनकी कार्यकर्ता वाली छवि रही है, जो कि केवल काम में ही जो इनका जो कंस्टिट्यूएंसी है अपने काम की वजह से माने जाते हैं। जी चौक्कस, जी सर, भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आया है। उसी तरह बात की एक सामान्य आदमी कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने अपनी कारकिर्दी शुरू की थी। एएमसी जो कॉर्पोरेशन है उसमें भी वो कॉर्पोरेटर रह चुके हैं और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह सकते हैं, यानी कि उनको पूरी तरह से लोग जानते हैं। जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता है वो भी उनके पास जा सकते हैं, वो आराम से उनसे मिल सकते हैं। यानी कि कहा जाए कि एक कॉमन मैन की छवि जो थी उसी तरह से उनको ये लाभ मिला है। बाद में वो ओडा के चेयरमैन भी थे और अभी लास्ट विधानसभा की चुनाव हुई थी, उन्होंने घाटलोडिया विधानसभा में वो काफी मतों से वो अपनी सीट पर चुने गए थे। जी, एक बड़ी लीड ली थी उन्होंने, 1 लाख से भी ज्यादा वोट्स की लीड ली थी उन्होंने। औपचारिक अनाउंसमेंट 1,17,000 votes in 2017 state assembly election. That's when he won with a huge margin, clinching the Gatlodia constituency. That was a big win. जी, जतिन ये बताइए, अब हम अभी विजुअल्स दिखा रहे जो कि पार्टी लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग अभी कुछ देर पहले जो संपन्न हुई, अब ऑफिशियली टेक ओवर कब होगा? स्वॉन इन सेरेमनी के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है आपको? स्वेरिंग इन सेरेमनी कब होगी? नहीं, वो अभी 1-2 घंटे में सब क्लियर हो जाएगी कि सेरेमनी कब होगी। और वहां जहां पर अभी ये राज्यपाल के पास भी आएंगे वे थोड़ी देर में, और उनसे कल का जो टाइम लेने वाले वो मांगेगा। उसके बाद तय हो जाएगा कि कल कितने बजे उनकी जो है वो शपथ विधि हो सकती है। जी, विजय रूपानी मुख्यमंत्री रहे, विजय रूपानी का रेजिग्नेशन देना और रातों रात भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आना, टू बी इलेक्टेड एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर, क्या ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था? क्या कुछ इस तरीके की कुछ स्पेकुलेशंस गुजरात के पॉलिटिकल सर्कल्स में, क्षेत्र में कुछ चल रही थी, और इट हैज कम एज अ ह्यूज सरप्राइज टू एवरीवन? नहीं, ये सरप्राइज हम नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1 साल से मुख्यमंत्री विजय भाई के बदलने के जो चर्चा थी वो जोरों पर थी, और गुजरात में ये कॉमन बात की किसी भी टाइम पर अगर मुख्यमंत्री जो है वो अपना रिजाइन दे सकते हो, लेकिन जो जिस तरह से उन्होंने कल रिजाइन दिया तो एक चौंकाने वाली बात है कि इतने शॉर्ट टाइम में कि उन्होंने जो रिजाइन दिया था। और एक भूपेंद्र पटेल की बात है, लोगों में ऐसा था कि जिस तरह से बीजेपी का एक निश्चित तय होता है कि जो नाम चर्चा में होते हैं वो नहीं होते, और दूसरा नाम ही निकल के आता है जो वो एक ऐसा छोटा सा आदमी हो, या कॉमन मैन हो, या एक सामान्य सा कार्यकर्ता हो जिसको ये बड़ा पद उनके ईमानदारी से जो अपने काम किया। कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाना, और हमने जो लाइव विजुअल्स भी दर्शकों को दिखाया, एक बहुत ही यूनानिमस डिसीजन रहा सभी का वहां पे। इनके नाम पे ऐसा लग रहा था कि एक पूरा कंसेंसस था, कहीं पे भी कोई किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं थी। तो इस डिसीजन के द्वारा पार्टी एक मैसेज भी देना चाहती है? जी चौक्कस, जी सर से भूपेंद्र पटेल का नाम आया। एक सर्वसम्मति से ये पार्टी में सभी एमएलए और विधायक दल है, विधायक है, उन लोगों को भी इसमें सहमति बनी है। या पाटीदार समाज की अगर बात करते हो, ये एक सर्वसम्मति से सभी में कार्यकर्ता पार्टी में बीजेपी पार्टी हो या पाटीदार समाज के हो, लेकिन ये सर्वसम्मति से नाम इनका भूपेंद्र पटेल का नाम, जो अभी तक का उनका जो कार्यकाल रहा है तो कोई विवाद अभी तक उन्होंने होना, एक सीधी साधी उनकी जो इमेज है उसी का लाभ उनको मिला है कि जो सर्व लोगों को साथ में लेके चलने वाले भूपेंद्र पटेल थे, तो उसी का आज उनको फल ये मुख्यमंत्री का बिरुद मिला है। जी, जतिन आप हमारे साथ बने रहिए, हम अपने डीडी इंडिया के दर्शकों को जानकारी दोबारा से देना चाहेंगे। भूपेंद्र पटेल इज गोइंग टू बी द 17th चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, टेकिंग ओवर फ्रॉम विजय रूपानी। In fact, he won by the huge margin of 1 lakh plus votes in 2017 Gujarat polls, representing, in fact, winning the Gatlodia constituency. That's the constituency which he represents, and now he's going to be the next chief minister. And a while back, party made an official announcement to that effect. Unanimously, there was a party consensus on his name, Bhupendra Patel, a non-controversial leader with a very common man image, non-controversial image,
a Karyakarta image, a party worker image, and we'll have to see if he chooses to speak to the news agency there or gives a first reaction to the media after his name has been formally announced as the next Chief Minister of Gujarat. विजय रूपानी के साथ इनको देखा जा रहा है। अभी हम जो ये दर्शकों को, जतिन आप हमारे साथ बने रहिए, जो दृश्य दिखा रहे हैं जी विजय रूपानी के साथ finally he has taken over. We will continue with Jatin. Jatin, वो जो हम बात कर रहे थे कि अब इस swearing in ceremony और क्या इस डिसीजन के बाद, इस बहुत बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन के बाद क्या कैबिनेट की शक्ल, क्या एक रीजिग रीशफल या कैबिनेट की शक्ल कुछ बदलती तस्वीर कुछ क्या नजर आ सकती है या नहीं? आपको आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? जी चौकस, मैंने जी सर से बताया कि एक नए मुख्यमंत्री का नाम आज जो घोषित हुआ है, उसके बाद मंत्रिमंडल में भी काफी बदलाव हो सकता है। जो सूत्रों के अनुसार हम बात करते हैं तो कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी पिछले कोरोना के वक्त जो कामगिरी थी वो उसमें बहुत सारी कमियां थी, और उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में आ सकते हैं कि जिनका कोरोना के काल में जो परफॉर्मेंस था वो खुद लोगों को घर घर जाके उन्होंने काफी मेहनत की थी और दवाइयां का वितरण किया था, या कुछ ऐसे लोगों के साथ खड़े रहते, अस्पताल में भर्ती करने की बात हो या फिर ऑक्सीजन का दिलाने की बात हो। ऐसे कई चेहरे नए हैं, युवा चेहरे, जिनको अगर ये नए मुख्यमंत्री का जो मंत्रिमंडल बनता है उसमें समावेश किया जाएगा, इस तरह से कह सकते हैं हम कि कई ऐसे बदलाव आएंगे जो 5 या 7 मंत्रियों को उसमें से अगर नए मंत्रिमंडल में उसका समावेश किया जाएगा। जी, क्या कुछ रीजंस हो सकते थे इस बड़े बदलाव को लेकर? हालांकि अब तो औपचारिक रूप से ये अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन हम अगर समझना चाहे या समझने की कोशिश करें कि समय जो अगर हम टाइमिंग्स की बात करें इस बड़े बदलाव की, क्या कुछ रीजंस हो सकते थे इस बड़े बदलाव को लेकर? जिस तरह से गुजरात में कोरोना के केस बढ़े थे पिछले 1.5 साल के अंदर, और जो छवि खराब हुई थी सरकार की, और उसी तरह से एक स्पष्ट लोगों में मैसेज था कि यह मुख्यमंत्री की जो है वो अभी कोरोना वक्त में अच्छी कामगिरी नहीं कर, एक लोगों में एक ऐसा संदेश आता कि सरकार निष्फल रही हुई है, और उसी के चलते ये बदलाव भी शायद किया गया है पार्टी की ओर से कि अभी इलेक्शन आने में 1 या 1.5 साल का समय है अभी, तो उससे पहले कोई नए मुख्यमंत्री अगर गुजरात को मिलते हैं तो लोगों में भी एक नया एक आशा जगेगी, और साथ में कार्यकर्ताओं में भी एक जोश कि भाई नए मुख्यमंत्री के साथ काम करने के लिए कार्यकर्ता भी जो है वो बहुत उत्सुक है, और उसी के नतीजे ये शायद 1.5 साल के अंदर जो छवि है वो अच्छी तरह से लोगों के सामने पेश की जाए, इसकी वजह से ये नए मुख्यमंत्री का चयन किया हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि आगे आने वाले चुनाव में जो बीजेपी की सीटें हैं वो और बढ़ सके, उसी के चलते ये बदलाव भी किया गया। जतिन आप हमारे साथ फोन लाइन पे प्लीज बने रहिए, आपसे निवेदन करते हैं। मीनवाइल लेट्स क्विकली कट अगेन। We will try and make a sense what Vijay Rupani, in fact I believe he has spoken there briefly, the outgoing Chief Minister of Gujarat Vijay Rupani, but before we wrap up, okay, he's speaking, let's take a look, let's listen in. આપણે ત્યાં કાર્યકર્તા કામ કરતો હોય છે। આજે આપણે બધા ભેગા મળીને આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જે ગુજરાતને વિકાસનું રોલ મોડેલ બનાવ્યું છે અને વિકાસની યાત્રાને જે એમણે શરૂઆત કરી એ યાત્રાને આગળ વધારવા આવનારી ચૂંટણીઓ પણ જેમના નેતૃત્વમાં લડવાની છે તે નેતૃત્વ પણ આજે નક્કી થયું છે, ત્યારે શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈને આપણા બધા વતી ખૂબ ખૂબ હૃદયથી શુભકામનાઓ આપું છું। ભૂપેન્દ્રભાઈ એક સરળ અને સૌમ્ય વ્યક્તિત્વ છે। ભૂપેન્દ્રભાઈ સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન તરીકે અને અવડાના ચેરમેન તરીકે એમને કામગીરીનો અનુભવ પણ છે, સાથે સાથે ધારાસભ્ય તરીકે પણ એમણે સફળતાપૂર્વક યશસ્વી કામગીરી પણ કરેલી છે। મને પૂર્ણ ભરોસો છે કે તેઓના નેતૃત્વમાં આદરણીય નરેન્દ્રભાઈએ શરૂ કરેલી વિકાસ યાત્રા એ 100 કલાએ ખીલશે અને ગુજરાત એ નંબર 1 બની જશે તેવી
મત હતા. મેં જ્યારે શપથ લીધા હતા પછી મેં કીધું હતું કે નરેન્દ્રભાઈ મુખ્યમંત્રી બન્યા પછી આ તો વિક્રમાદિત્યનું સિંહાસન થઈ ગયું છે. આના ઉપર જે રહેશે ને એ સફળતાપૂર્વક કામ કરી શકે. એટલે ભૂપેન્દ્રભાઈ આટલા બધા લોકો હવે નરેન્દ્રભાઈથી માંડીને અહીં બેઠેલું સંપૂર્ણ નેતૃત્વ અને સૌ ધારાસભ્યો તમારી સાથે છે. તમે આગળ વધો અને ગુજરાતની જનતાની અપેક્ષા આકાંક્ષા કે સપનાઓને પૂરા કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા જે ભારત માતાને એક જે શક્તિશાળી ભારત માતા આત્મનિર્ભર ભારત જગતજનની ભારત આપણે સૌ બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. એમાં ગુજરાત અગ્રેસર કરી રહેશે તેવી શુભકામના સાથે આપણે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, સૌનો આભાર. All right, let's try and go back to Jatin. Meanwhile, what we can share with the viewers of DT India, Bhupendra Patel, in fact, who is seen as the protege of the UP governor and ex-chief minister Anandiben Patel, she was the one who represented this constituency earlier, has been now elected as the new Chief Minister of Gujarat. Bhupendra Patel is an MLA from Gatloria constituency, Gatloria seat. That's the seat that he won way back in 2017 Gujarat Assembly polls, the seat that was earlier held by Anandiben, and he is going to be now man at the helm of affairs in Gujarat as far as Gujarat politics is concerned, taking over from Vijay Rupani. Vijay Rupani, in fact, briefly spoke to the party workers. They will try and make sense. Now Bhupendra Patel is speaking. Let's listen. थोड़ा नीचे अरे भाई मोबाइल नीचे करो ना क्या आराम से भी कर लेंगे. कौन है यार तुम कौन हो कैमरामैन सारे बोलो सत्येंद्र साई कर रहा है रिक्शा बैठी हाँ सर्व वડીલોને અને સામે બેઠેલા દરેક વડી મને સૌથી નાનો વડી અને આજે કાર્યભાર વડી ઊંધો છે એ સૌની સાથે રહી અને નિભાવવામાં મદદ કરશે એક અભ્યર્થના ભારત માતા કી જય વંદન. क्या हुआ किसका चलेगा All right, let's try and make sense what Patel in that brief, not really speech, but in his opening remarks, soon after taking over as the next Chief Minister of Gujarat from Vijay Rupani. Vijay Rupani, in fact, congratulated Bhupendra Patel for being the next Chief Minister of Gujarat. He said that he will definitely, Vijay Rupani said that Patel will definitely live up to the expectations of the people of Gujarat. And Bhupendra Patel, for those who's just tuned to DD India, Jatin is with us. Bhupendra Patel won 2017 assembly elections in Gujarat by a huge margin of 1 lakh plus votes. That was the seat which was earlier held by Anandiben Patel. In fact, Jatin, आप हमारे साथ जुड़े. सबसे पहले ये बताइए, भूपेंद्र पटेल ने अभी जो संबोधन किया, क्या कुछ कहा उन्होंने? जिस तरह से उन्होंने अभी संबोधन कमल में किया है कि जिस तरह कार्यकर्ताओं को एक साथ लेके चलना है और गुजरात का जो विकास है वो उसी तरह से चलता रहेगा जैसे अगले मुख्यमंत्री ने जो विकास किया है गुजरात का, तो उसी में उसी तरह से ये विकास जो है वो चलता रहेगा. जी, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना, तो ये जो बहुत ही एक संक्षिप्त में जो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, क्या मैसेज देने की कोशिश है यहाँ पे? जिस तरह से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि सबका साथ सबका विकास, उसी के राह पर ये भूपेंद्र पटेल है, वो भी उन्होंने भी यही कार्यकर्ताओं का मैसेज दिया कि सबका साथ सबका विकास, यानी कि गुजरात के सभी ऐसे समुदाय है जो यानी कि पाटीदार समाज हो या ओबीसी हो या एसटी, तो सब समाज को साथ लेके चलने वाली की जो बात है और उसी के तरह से सबको साथ लेके जो गुजरात का विकास है उसी तरह से ये विकास चलता रहेगा. जी, और विजय रूपानी ने भी एक तरीके का कॉन्फिडेंस जताया है. उन्होंने कहा कि भूपेंद्र पटेल सभी उम्मीदों पे उतर पाएंगे. विजय रूपानी के बारे में कुछ बताया जो उन्होंने जिस तरीके से औपचारिक तौर पर भूपेंद्र पटेल को कॉन्ग्रेचुलेट किया अपने संबोधन में.
भूपेंद्र पटेल और विजय रूपाणी जी काफी समय साथ में उन्होंने साथ में रहे, यानी कि घाटलोडिया विधानसभा के मत क्षेत्र में चुने जाने के बाद वो काफी नजदीक थे और एक दूसरे को अच्छी तरह से वो पहचानते थे। यानी कि रूपाणी जी का ये कहना था कि भूपेंद्र पटेल जो अगले मुख्यमंत्री होंगे तो कोई कसर ऐसी नहीं बाकी रहेगी कि जिसमें गुजरात का विकास न हो, और जो सबको साथ लेने वाली बात। विधायक दल का जो हमने नेतृत्व चुना है उसका पत्र हम लोग अपने पर्यवेक्षक के साथ अभी हमारे मुख्यमंत्री विधायक दल नेता का चुनाव हुआ है, वो पत्र 6 बजे हम महामहिम राज्यपाल जी को देंगे। जी जतिन, आप बताएं आप। हाँ, तो रूपाणी जी ने भी यही किया कि वो अच्छी तरह से भूपेंद्र पटेल को अच्छी तरह से पहचानते, उनके साथ उन्होंने काम किया है, तो एक विश्वास है कि जो अगले मुख्यमंत्री के पद पर जो नाम तय किया गया भूपेंद्र पटेल, वो अपनी जो गुजरात की विकास गाथा है उसको आगे बढ़ाएंगे और एक समर्थ गुजरात के मुख्यमंत्री के तय पर वो अपना कार्यभार संभालेंगे। जी, जिस तरीके की इनकी छवि रही है, जैसा आप हमें बताते आ रहे हैं कि ये कार्यकर्ता के रूप पे अपने काम को लेकर काफी माने जाते हैं वहां पे गुजरात में, खासतौर पर कंस्टिट्यूएंसी में, तो अब इनकी प्रायोरिटीज, अब एक एजेंडा, एक क्या प्रायोरिटी लिस्ट लेके आएंगे, कैसे चलाएंगे गुजरात की अब सरकार, क्या कुछ इस पे कुछ आप मतलब व्हाट इज रियली एक्सपेक्टेड, व्हाट विल बी हिज प्रायोरिटीज नाउ? अगर भूपेंद्र पटेल की जो बात करी जाए तो एक एजुकेटेड चीफ मिनिस्टर के तौर पर अभी उनका नाम अभी आया। उन्होंने उनके जो शिक्षण की बात करें तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियर उन्होंने किया, यानी कि उनको पूरी तरह से सरकार किस तरह से चलाई जाती है उसका अनुभव उन्होंने कॉर्पोरेशन एएमसी में जब वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे उसी टाइम से उनको मिला है। यानी कि जो किस तरह से ये स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे तो उसी तरह से एएमसी का जो डिसीजन थे तो वो लेते थे। बाद में उनको ओडा का चेयरमैन बनाया था तो वो भी उनको एक काफी लंबा अनुभव उनको पहले से निचले स्तर पर से उनको मिला है और उनके लिए ये बड़ी मुश्किल बात नहीं होगी कि अगर मान लो कि गुजरात के मुख्यमंत्री जी अभी वो बने हैं तो उनको सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनके आगे वाला जो एक्सपीरियंस उनको जो मिला है निचले स्तर पर से तो वो उनको काफी अभी ये काम में आएगा इसे सरकार चलाने में के लिए। जी जतिन, ग्रास रूट पॉलिटिक्स के साथ आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भूपेंद्र पटेल की जो छवि है ग्रास रूट पॉलिटिक्स से हमेशा से जुड़े रहे हैं और उनका जो काम रहा है और जिस तरीके की जीत उन्होंने हासिल की 2017 के चुनाव में, वो सीट जो आनंदीबेन पटेल पहले उनका उस सीट पे वर्चस्व माना जाता था, फिर भूपेंद्र पटेल ने जीती वो सीट, तो ये ग्रास रूट पॉलिटिक्स एक तरह से भूपेंद्र पटेल की क्या एक एडवांटेज मानी जाएगी और सरकार और एक आलाकमान एक जो ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सबका साथ सबका विकास और आप आए आप काम करें और उसी का फल मिलेगा। सही बात कही आपने कि जिस तरह से आनंदीबेन पटेल ने रिजाइन दिया था, आनंदीबेन पटेल की जो सीट थी वो घाटलोडिया सीट थी और उसमें सबसे ज्यादा जो मतदार थे वो पाटीदार समाज के थे, तो एक तरफ उस टाइम उसे सोचा गया था कि ये सीट है वो विपक्ष में जा सकते हैं, लेकिन उस टाइम भारतीय जनता पार्टी ने उनको घाटलोडिया से ये सीट पर उनको लड़ाया था और बाद में वो 1 लाख से भी ज्यादा वोट से उसी सीट पर जीते थे जहां पाटीदार समाज का वर्चस्व था। यानी कि लोग बोल रहे थे कि ये सीट अगर पाटीदार समाज के आंदोलन के चलते ये सीट अगर जा सकती है, लेकिन फिर भी पाटीदारों का जो मत थे वो तो उनको मिले ही और दूसरे समाज के जी वो वोट थे तो वो भी उनको मिले और 1 लाख से ज्यादा वोट थे उसी टाइम वो अपने चुने गए थे। यानी कह सकते कि सब समाज का जो साथ है उनको मिला है और उन पर सब मतदार है वो एक विश्वास भी किया था उस टाइम और उसी के चलते वो अपने ये विधायक का चुनाव लड़ते हुए और इस तरह से वो कही जा सकते हैं कि वो उनकी जो छवि रही है वो एकदम साफ छवि रही है, उस पर कोई एक ऐसे आरोप या प्रत्यारोप उस पर आज तक वो एएमसी में थे या ओडा में थे, लेकिन अभी तक वो बिन विवादित रहे कि उनके ऊपर पक्ष पर एक भी कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ है। जी, एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल छवि, एक ग्रास रूट लेवल लीडर, ऐसी उनकी एक छवि रही है। जतिन, अब बड़ा सवाल ये है औपचारिक तौर पर स्वेरिंग इन सेरेमनी कब होगी और उस स्वेरिंग इन सेरेमनी में क्या कुछ और फेरबदल की आशंका की जा सकती है? आपके सूत्र आपको क्या बता रहे, क्योंकि ये भूपेंद्र पटेल का नाम सबसे ऊपर रहना, भूपेंद्र पटेल अगले मुख्यमंत्री गुजरात के अपने में ही एक मैसेज है, तो क्या इसके चलते कुछ आगे भी हमें सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं? चौकस जिस तरह से अभी बात हुई थी तो कुछ थोड़ी देर में वो यहाँ राज्यपाल से मिलने आएगा,
मिलने आएंगे और उसके बाद तब वो तय हो जाएगा कि कब वो अपने शपथ समारोह होगा, किस टाइम होगा। और राज्यपाल को मिलने के बाद वो पूरा जो है डिटेल है वो सब पास में आ जाएगी। यानी कह सकते हैं कि अभी अगले दिन यानी कि कल अगर हो सकता है तो वो शपथ समारोह तुरंत कर देगी, क्योंकि ये जो समय है वो उसी टाइम ये वो डिसीजन लेना है, तो शायद कल हो सकता है शपथ समारोह उनका। लेकिन अभी वो सूत्रों के द्वारा हमें माहिती मिली, लेकिन अभी कंफर्म नहीं बोल सकते। अभी थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा। जी, दोबारा से जो भूपेंद्र पटेल ने उनके अनाउंसमेंट के बाद किस तरीके से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, he addressed, in fact there was a brief address, in fact Bhupendra Patel spoke to his party leaders, he thanked them for unanimously electing him, and also saying that he's in fact he gave the credit to the party workers, पार्टी कार्यकर्ताओं का उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया। बहुत ही संक्षिप्त में बात की लेकिन बड़ी बात की। जतिन जी चौकस जी, वो मैंने कहा पहले से कहा कि वो एक काफी कम बोलते हो लेकिन काम में ज्यादा विश्वास रखते हैं। उनका एक जो छवि रही वो एकदम साइलेंट छवि रही है कि वो अपने जो काम से पहचाने जाते। भूपेंद्र पटेल एक ऐसे व्यक्तित्व है कि जो काम से पहचाने। ये मान लो कि जब कॉर्पोरेशन में तो छोटा आदमी उनके पास काम लेके जाता था अपने वार्ड का, तो उसी टाइम उसका वो काम हो वो भी करता। आज भी उनकी घाटोड़िया में ऑफिस और सब कार्यकर्ताओं को एकदम आसानी से मिलते। उनकी मत क्षेत्र में, घाटोड़िया मत क्षेत्र में जो भी काम है तो वो रूबरू जाके पहचानते। और यानी कि मतदारों में इतने लोकप्रिय है, कहा जा सकता है कि उनका जो मत क्षेत्र के जो भी मतदार है वो उनको आसानी से मिल सकते हैं और उनका जो काम है वो तुरंत वो करवा देते हैं। जी, BJP leader Bhupendra Patel has been elected as the new chief minister of Gujarat. In fact, what we can share with our viewers, senior BJP leader Bhupendra Yadav, a brief a while back, in fact, spoke to media. He said that Patel is going to meet the governor at around 6 p.m. today, and yes, 6 बजे गवर्नर से मुलाकात होगी और उसके बाद जतिन उम्मीद जताई जाती है कि स्थिति और क्लियर हो सकती है। जब वो राज्यपाल से मिलने के आचार्य देवव्रत जी, उसके बाद स्थिति तय होगी कि कल कितने बजे, कल या परसों जो भी समय तय होगा उसी तरफ से ये पूरी हमारे डिटेल हमको मिल जाएगी कि वो उनका जो शपथ विधि समारोह हो वो किस तरह से होगा। जी, अब आगे की अब आगे का जो प्लान रहेगा, हम दोबारा उसी सवाल पे आएंगे जतिन, बिना स्पेकुलेट किए कि भूपेंद्र पटेल, टीम भूपेंद्र पटेल, क्या कोई एक मेजर रीशफल या रीजिग देखा जा सकता है गुजरात कैबिनेट में भूपेंद्र पटेल का आना, और उसके साथ क्या कुछ फेरबदल की भी उम्मीद की जा सकती है? जी चौकस, मैंने पहले बताया उसी तरह से बदलाव तो हो सकता है, काफी बड़ा बदलाव हो सकता है। मैंने कहा उसी तरह से कई ऐसे मंत्री रहे हैं जिनको जो युवा चेहरे उनको खासकर मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा, और जो जनता में लोकप्रिय है यानी कि उनकी छवि जिस तरह से अच्छी रहती है, तो ऐसे 5 या 7 मंत्री ऐसे फेरबदल किए जा सकते हैं जिनको जो बड़ी जवाबदारियां दी जा सकती है। राइट, जतिन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप हमारे साथ बने रहिए। फॉर द व्यूअर्स हु हैव जस्ट ट्यून्ड इन टू डीडी इंडिया, बिग डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट रादर, कमिंग इन फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात. Bhupendra Patel, in fact, is going to be the next chief minister, is going to be sworn in as the next chief minister of the state of Gujarat, 17th chief minister of Gujarat, taking over from outgoing chief minister Vijay Rupani. In fact, he won Gujarat assembly elections representing Gatlodia constituency. And now, before we move on this big political development, we have some more political reactions coming in. In fact, Bhupendra Patel himself briefly spoke to party karyakartas or party workers a while back. We have some political reactions. Let's tune in. जनता पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये जो निर्णय लिया है, भूपेंद्र भाई सक्षम है और आने वाले चुनाव उनके नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जीतेगी, हमें सबको पूर्ण विश्वास है। Outgoing Chief Minister Vijay Rupani, in fact, briefly speaking to media out there, stating that the party, in fact, the entire BJP party in Gujarat is confident that under the leadership of Bhupendra Patel, the new Chief Minister of Gujarat,
party is going to come up victorious. If it's possible, we can play that Bhupendra Patel brief address to the Karyakartas a while back when he spoke to Karyakartas after taking over. He said that the credit goes to the grassroots workers, the party workers as well. In fact, the meeting of the BJP core committee a while back got over. That the name that came up unanimously, the name on which we had a full consensus, was Bhupendra Patel, the next Chief Minister of Gujarat. He's going to be meeting the governor at around 6 o'clock. That's what we can share with our viewers, and we will have to see when the swearing-in ceremony will be taking place. And in fact, on your screen you can see the visuals of the core committee meeting, which concluded a while back. And Jatin हमारे साथ बने रहे. Jatin, आपने विजय रूपानी जी का स्टेटमेंट सुना ही होगा. तो एक बात तो क्लियर है कि अगला असेंबली इलेक्शंस टारगेट मिशन वही है, और उसके अलावा जब भी गुजरात की बात होती है डेवलपमेंट का जिक्र पहले आता है. पैंडेमिक में किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन रही उसको कैसे और ज्यादा चुस्त करना और ज्यादा रोबस्ट करना, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आंखें बिल्कुल आपका मिशन, आपका टारगेट बिल्कुल गुजरात चुनाव है. जतिन जी चौकस, जिस तरह से ये बदलाव आया है, नए मुख्यमंत्री का आज नाम घोषित किया, उसके ये क्लियर है कि अगले चुनाव जो 2022 में गुजरात के आ रहे उसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिले और अपने फिर से एक बार अपनी सरकार बनाए. उसी के चलते ये बदलाव किया गया कि जो छवि थी जो कोरोना के समय में गुजरात की जो कोरोना के बढ़ते केस से बिगड़ी हुई थी, उसी स्थिति को सुधारने के लिए ये बदलाव किया. जबकि विजय रूपानी ने भी माना है कि ये भूपेंद्र पटेल है वो एक सक्षम लीडर है और नेतृत्व जो है उनका है वो काफी बड़ा हो सकता है कि पूरे डिसीजन मेकर से लेके सब ये निर्णय अच्छी तरह से ले सकते हैं. और गुजरात की जो विकास की बात करें तो गुजरात की विकास तब हुई थी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, और उसी दिन से ये विकास की जो गाथा शुरू हुई थी वो आज तक के जो भी मुख्यमंत्री आए उन्होंने ये जिम्मेदारी बड़ी शान से निभाई है. तो उसी के चलते ये भूपेंद्र पटेल के लिए भी ये जिम्मेदारी बनती है कि गुजरात को और कैसे आगे लाया जा सकता है कि ये विकास की जो परंपरा रही है पिछले 25 साल से वो रुक न पाए. जी जतिन, आप हमारे साथ बने रहिए. हम अमित शाह जी का ट्वीट भी आया है. भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाइयां व शुभकामनाएं. Amit Shah, Union Minister Amit Shah, in fact, congratulating Bhupendra Patel, in fact, and he is also adding that he is confident that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, Bhupendra Patel will come up to the expectations. As far as being the next Chief Minister of Gujarat is concerned. मेरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन व आपके नेतृत्व में प्रदेश की अनवरत विकास यात्रा को नई ऊर्जा व गति मिलेगी और गुजरात सुशासन व जन कल्याण में निरंतर आगे बढ़ेगा. तो एक तरह से जतिन आप हमारे साथ बने रहे. आप जिस तरीके का अमित शाह जी का एक मैसेज अभी जो आपने भी सुना होगा, उन्होंने ट्वीट किया है, तो एक ब्लूप्रिंट और एक क्या प्रायोरिटीज रहेगी साफ है. जन कल्याण गुजरात में सुशासन. जी चौकस, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो उनको अभिनंदन दिया है कि वो अमित शाह जी भूपेंद्र पटेल के काफी करीबी रहे हैं, तो उनको वो अच्छी तरह से पहचानते हैं. और गांधीनगर लोकसभा मत क्षेत्र का जो भी विकास का और डेवलपमेंट का काम है वो पहले से ये घाटलोडिया के जब विधायक भूपेंद्र पटेल थे वही आज की तारीख में भी वही गांधीनगर लोकसभा मत क्षेत्र का जो विकास के काम है वो उनकी निगरानी में ही होते हैं. तो गृहमंत्री अमित शाह जी को भी काफी अच्छी तरह से उनके करीबी रहे थे, तो उनको मालूम है कि भूपेंद्र पटेल की क्षमता क्या है और एक विश्वसनीयता जो होती है एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी के लिए तो उनको जो समर्पित जो उन्होंने किया था और उसी के चलते आज उनका नाम घोषित किया गया है. तो एक बड़ी जिम्मेदारी भूपेंद्र पटेल को मिली है कि गुजरात की जो विकास गाथा है वो किस तरह से उसको आगे ले जा और अपना योगदान किस तरह से गुजरात में रहे, वो भी एक उनके लिए ये बड़ी जिम्मेदारी रहेगी. जी, एक नई ऊर्जा देने की भी अमित शाह जी ने बात की है. आप जतिन हमारे साथ बने रहिए बिकॉज वी विल वंस अगेन गो बैक टू सम मोर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स एंड रिएक्शंस दैट हैव come in. Let's hear the reaction
from Bhupendra Yadav. In fact, he spoke to media a while back. He also talked about the next meeting with the governor that is slated at around 6 o'clock today. Let's listen in. हमारे घाटलोड़िया के जो विधायक हैं, जिनके पास एक प्रशासनिक अनुभव भी है, उनको सर्वसम्मति से चुना गया है और गुजरात भारतीय जनता पार्टी गुजरात के विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हम गुजरात के विकास के लिए सब आगे तत्पर रहेंगे। जी जतिन, आखिरी सवाल, वी नीड टू रैप अप दिस ब्रॉडकास्ट। अब 6 बजे की मीटिंग भी इंपॉर्टेंट है जो कि गवर्नर के साथ इनकी होने वाली है और अब अगला जो एक तरह से कह सकते हैं एक मुख्य बिंदु होगा कि स्वेरिंग इन सेरेमनी, और क्या कुछ कैबिनेट में बदलाव देखने को मिलेंगे या नहीं? जी चौक्कस, जिस तरह से अभी जो कोर कमेटी की बैठक के जो मेंबर्स है वो अभी 6 बजे के आसपास गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत जी, उनके यहाँ राजभवन में आएंगे और उनसे जो कल का है वो समय मांगेंगे और किस तरह से ये समय दिया जाता है कल का, उसी के पर ये कल का जो शपथ समारोह होगा वो तय किया जाएगा। और फिर बाद में जो बदलाव की बात है तो बदलाव तो तय ही है कि जिस तरह से जो ये नए मुख्यमंत्री है तो वो अपनी भूपेंद्र पटेल की टीम में किन किन लोगों को समाया जाए और कई ऐसे युवा चेहरे हैं जिनका काम अच्छा रहा है, जो लोगों के बीच में रहे और कार्यकर्ताओं में के साथ रह के उनके चले, तो कई ऐसे बदलाव आ सकते हैं और उनकी टीम में, भूपेंद्र पटेल की टीम में ये 5 या 7 चेहरे नए समावेश किए जाएंगे। ऑलराइट जतिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच जतिन। एंड बिफोर वी wrap up, let me quickly update our viewers on the latest political developments coming in from Gujarat. In just months ahead of the crucial assembly elections in the state of Gujarat, Bhupendra Patel taking over the reins from outgoing Chief Minister Vijay Rupani. He is now in fact going to be sworn in as the 17th Chief Minister of Gujarat. In fact, senior BJP leader Bhupendra Patel, who is known to be the protege of the former Chief Minister Anandiben Patel, as his name has formally been announced as the next Chief Minister of Gujarat. He's going to be succeeding Vijay Rupani. Vijay Rupani, outgoing Chief Minister, congratulated him, and he also did exude confidence that Patel will come up to the expectations of the people of Gujarat and the entire party machinery. In fact, he was elected as the leader of the legislative party the party meeting which concluded a while back. In fact, just to quickly share some information, some more inputs about Bhupendra Patel representing the Ghatlodiya seat. He won the same seat in 2017 assembly elections by huge margin, 1,17,000 plus votes, and was also earlier the part of the Ahmedabad Municipal Corporation, a very non-controversial leader corporation. Also, he was part of the Ahmedabad Urban Development Authority as well. Well, that's what we have for you in this broadcast, but this is also going to be our top focus in our subsequent bulletins as well. Meanwhile, thank you so much for tuning in to News Connect on DD India. I'll take your leave. Namaskar.